میرے بھائیوں احترام دوستوں بزرگوں والے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع سیرت چل رہا ہے۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخالفین کے ہر سوال کا جواب دیا تو انہوں نے مختلف انداز سے تکلیف دینا شروع کی، مطالبے شروع کر دیے، اور پھر چھپ چھپ کر کے قرآن پاک بھی سنتے تھے، علیحدگی میں یہ بھی کہتے تھے یہ ہے تو ٹھیک، جب سامنے بات آتی تو کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ہمارے کان بوجھل ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی جگہ پہ فرمایا کہ ہمارے دل پردہ کے اندر ہے، آپ کا کام دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردہ میں ہے، میں نے بھی پردہ ڈال دیا، اب یہ قرآن سن نہیں سکتے۔ اور آگے پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اللہ کریم ایک عرصہ کے بعد زندہ اٹھائے گا، پتہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں تو زندہ ہو جائیں گی، وہ کون زندہ کرے گا؟ آج تک کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی زندہ نہیں ہوا، تو یہ ایک ناممکن بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے لوگ اسلام کے مخالف ہیں نا، یا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وہ اندر سے بات سمجھتے ہیں، صرف وہ ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے تو ایک مخصوص طریقے پہ زندگی گزارنی ہوگی، جائز اور ناجائز کا فرق کر کے زندگی گزارنی ہوگی، لہذا انکار کرو اور مرضی کی زندگی گزارو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کونوا حجارة أو حدیدا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجیے مٹی نہیں بلکہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پھر بھی اللہ کریم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ سلسلہ آگے چلتا رہا، تقریباً شروع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور سامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی جمح کے غلام تھے اور پردیشی غلام تھے، ان کے والد غلام تھے تو یہ پیدا ہوئے پردیشی عالم میں غلام تھے، جب بڑے ہوئے تو دن رات آقا کی خدمت کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ میں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ربا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میرا سردار جو امیہ تھا یہ چوٹی کے مخالفین میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، گالیاں نکالتے، مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، لیکن کبھی کبھی جب بڑے سردار وہاں جمع ہوتے تھے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، وعدہ وفائی کیا ہے اور ہمیشہ اچھی بات کا یہ حکم دیا ہے۔ علیحدگی میں بیٹھتے تو ان باتوں کا اعتراف کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سوچتا کمال بات ہے، ایک آدمی سچا بھی ہے اور پیدائشی سچا ہے، بچپن سے سچا ہے، آج تک اس کے ذمے کوئی گناہ اور
सच्चाई का, जिसकी सदाकत का ये इकरार भी करते हैं और इकरार के बावजूद उसे झुठलाते हैं। एक तड़प थी, शिद्दत थी। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया चलाते हुए इनकी मुलाकात हो गई और आमने सामने देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दावत आमने सामने सुनी तो बेख्तियार कलमा पढ़ उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैंने कलमा पढ़ा लेकिन जुल्म सितम के पहाड़ शुरू हो गए। जो कर सकता था उमैया बिन खल्फ उसने किया, मुझे मारा, मुझे घसीटा, तपती रेत पर, गलियों में, पत्थरों के नीचे, अंगारों के ऊपर रखा गया। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की ज़ुबान से अहद अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यही वो बुलंद करते रहते थे। आखिरकार उमैया बिन खल्फ कहता है बिलाल जितनी तकलीफ में तुझे रहता हूँ अब उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है। मुझे लोग कहते हैं तू इतना बड़ा सरदार है और एक तेरा अदना गुलाम वो तेरे दीन को छोड़ गया, तेरा गुलाम होकर के उसने तेरी बात को ठुकरा दिया, उसने यकीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और तेरी सरदारी पर कुफ है। बिलाल जब वो मुझे बातें करते हैं ना तो मुझे तुझसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इतनी तुझे राहों में तकलीफ नहीं होती जितनी मुझे ये बातें सुनते हुए तकलीफ होती है। तो एक दिन सरदार इकट्ठे हुए तो कहते हैं बिलाल तेरी हालत पर अब हमें रहम आया है, तरस आया है। अच्छा यार आहद आहद न छोड़, सिर्फ हमारे महबूबों की तारीफ ही कर दे, हमारे महबूबों की क्या कर दे, तारीफ ही कर दे। ये जुल्म सितम, मारना पीटना, घसीटना ये हम ख़त्म कर देंगे। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नहीं, तारीफ़ों के लायक सिर्फ अकेले किसकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। फिर कहते हैं ये अच्छा मान लिया, ये बड़ा माबूद, बड़ा मालिक, बड़ा खुदा, बड़ा बादशाह अल्लाह ही है। बस इतना कह दे, ये नीचे छोटे छोटे हैं, इतना कह दो कि ये नीचे क्या है, छोटे छोटे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं नहीं, ये क़तअन नहीं हो सकता। सारे के सारे कुल्ली इख्तियार किसके पास है, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास है। उन्होंने फिर पकड़ा और अंगारों पे लिटाया, फिर मारना शुरू कर दिया। 3 शर्तें दी, हमारे महबूबों की तारीफ़ कर दे, हमारे बाप दादा के दीन पर आ जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कुछ बेचारे ऐसे भी कमज़ोर थे कि मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए कह भी देते थे। और अल्लाह तो दिलों की हालत जानता है। सूरत हिज्र सूरत नहल पारा नंबर 14 में अल्लाह करीम फरमाता है जो मजबूर होकर के इनकार करता है उसका दिल मुतमईन है, मैं उसकी भी बख्शिश करूँगा, मैं उस पर भी बख्शूंगा नहीं। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने मजबूरी की हालत में भी इनकार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में कुछ भी नहीं बोला, नाज़ेबा लफ्ज़ नहीं निकाले। अल्लाह की तौहीद के खिलाफ अदना सा जुमला भी जुबान से नहीं निकला। ये हमारे लिए वो नमूना है। इसीलिए तो अल्लाह करीम फरमाते हैं लोगों ईमान लाना है, अमाल करने हैं। तो जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ईमान लाया तो भी इसी तरह ईमान लाया, तब हिदायत याफ्ता हो सकते हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को एक दफ़ा उन्होंने लिटाया हुआ है और बड़ी चट्टान उनके सीने पर रखी हुई है और साथ साथ वो भी रहे, आहद आहद की आवाज़ भी लगा रहे। तो इन्हीं कबीला बनी जुर्म के महल्ला में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का घर था। तो वो गुज़रे, उन्होंने देखा, कहते हैं कि उमैया इसको बेचते हो, मांगी कीमत ले लो, मैं ख़रीदता हूँ। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरे पास एक गुलाम है जो इनसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा काम कर सकता है, वो ले लो और वो तेरे दीन पर है और ये मुझे वापस कर दो। तो जब सौदा हो गया, उमैया तो इसी इंतज़ार में था कि
रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ पकड़ लिया, ले लिया, तो आगे से एक ताना देता है और घिसे पिटे लफ्ज़ कहता है। उमैया कहता है अगर 1 रुपया भी देता तो मैं देने के लिए तैयार था, इतना निखट्टू है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर इससे भी डबल कीमत मांगता तो मैं देने के लिए तैयार था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये निखट्टू है या नहीं, बल्कि उन्होंने ईमान की कीमत लगाई, उन्होंने तकवा की, इस्तिकामत की कीमत लगाई और ख़रीद लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और आपने उधर ही आज़ाद कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी दुआएं दी। अब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह रहे। अब हदीस पाक सुनाता हूँ, तिरमिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस्लाम के बारे में जितने दुख और मुशक्क़तें मैंने उठाई हैं, इतने दुख और मुशक्क़तें और किसी ने नहीं उठाए। आपने फरमाया बिलाल और मैंने 30 दिन भूखे गुजारे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बिलाल का भी तज़किरा किया, उसकी कुर्बानी का भी तज़किरा किया, सब्र का, इस्तिकामत का तज़किरा किया। ये आखिर क्या था? इतनी तकलीफ़ के बावजूद मैं बार बार वो हदीस सुनाता हूँ, मेरे तो ईमान को हलावत मिलती है, तक़वियत मिलती है, इंशाअल्लाह आपका ईमान भी बढ़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस बंदे ने ईमान की मिठास पाली, ईमान की हलावत पाली, अब उसे टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, फिर वो ईमान नहीं छोड़े। ये मिठास हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाली थी, वो हलावत ईमान की पाली थी, जो मिठास है ईमान की, इसलिए वो किसी कीमत पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और अल्लाह की मोहब्बत दिल में घर कर चुकी थी। अरसा गुजरता गया 13 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मक्का छोड़ दिया जाए। इतने मजबूर हो गए, मदीना चले गए। मदीना के अंदर जब गए, शुरू में मुशरिकीन मक्का बड़े खुश हुए, चलो मुसलमानों से मक्का पाक हो गया। लेकिन फिर उन्हें जहन में ख्याल आया जो हमारा रोज़गार चल रहा है, हमारी तिजारत चल रही है, ये तो शाम की तरफ हम जाते हैं तो मदीना से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पर अगर ये मुसलमान कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारी तिजारत नहीं चल सकेगी। इन्होंने इरादा किया मदीना पर हमला कर दिया जाए। मदीना पर हमले की तैयारी, बदर का मैदान सचा, सारे सरदार निकल रहे हैं, लेकिन उमैया बिन खल्फ नहीं निकल रहा, बैठा है घर में। इसका बड़ा गहरा दोस्त था उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, वो ही इसे उकसाया करता था, ताने दिया करता था बिलाल को और मारो बिलाल को। लेकिन उमैया पर इस जंग का एक रोब और दबदबा कायम है, वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। सरदारों में बैठा हुआ है, उक़बा बिन मुअय्यिद ने चूड़ियाँ ली, कुछ और सामान दिया, औरतों के बनाओ से घर वाला, और दाखिल हुआ और कहता है उमैया कहाँ है? उमैया मैं तुम्हें बहादुर समझता था, तू तो बुज़दिल है, तू औरत है, ये चूड़ियाँ लो, हम जंग के लिए जा रहे हैं, तुम पहनो और गलियों में फिरो, तुम मर्द नहीं हो। जब ये ताना दिया उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ने, उसके दोस्त ने, और भरी मजलिस में उसकी बेइज्जती की। अब उमैया खड़ा हो गया, न चाहते हुए मदीना की तरफ, बदर की तरफ निकल पड़ा। अब मैदान सज चुका है, दोनों तरफ से सफ़ें खड़ी हैं, एक तरफ मुट्ठी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत है और अक्सरियत गुलामों की है। अक्सरियत के पाँव में जूते नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, और इधर हज़ार और अमीर तरीन लश्कर, हर सहूलत उसके पास। शुरू में इनफिरादी लड़ाई हुई, फिर इज्तिमाई लड़ाई हुई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तपते अंगारों पे और गर्म रेत पर घिसटते हुए मक्का की गलियों में और पत्थरों की चट्टानों के नीचे आहद आहद अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किया करते थे, आज वो बदर के मैदान में तलवार पकड़े हुए अपने नारे को बुलंद करते हुए कुफ़ार की सफ़ों को चीरते हुए उमैया बिन खल्फ के करीब पहुँचते हैं। उमैया दौड़ता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। ये ज़माना जहलियत में आपस में दोस्त थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमान हो चुके,
बच न पाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे साथियों को लेकर घेरा डाल लिया। इतने में अली उमैया का बेटा आया तो एक सादी रसूल ने तलवार मारी और उसके पाँव काट करके रख दिए। और इतने में उमैया ने डर करके जोरदार चीख मारी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं आज तक ऐसी मैंने चीख नहीं सुनी। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसे छोड़ा और कहा अब खुद ही अपने आप को बचा सकता है, मैं नहीं बचा सकता। उन्होंने छोड़ा तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही अहद का नारा तकबीर बुलंद करते हुए तलवार की जल लगाई और उस अल्लाह के दुश्मन का सर कलम करके रख दिया। यूँ अपनी मज़लूमियत का और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने बदला ले लिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला के वादे हैं। ये मेरी मदद ज़रूर है, सिर्फ हमारी ईमान की कमज़ोरी है कि हम फ़ौरन वो देखना चाहते हैं, हम फ़ौरन वो देखना चाहते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने वो मदद और नुसरत 15 साल के बाद देखा, वो वादा 15 साल के बाद देखा है। चक्कियों में पीस करके निकले हैं तो वो वादा देखा, फिर ज़िंदगी गुजारते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गज़वा में शरीक हुए और इस्लाम के लिए अपना माल जान वक्त कुर्बान करते रहे। हत्ता कि वो वक्त आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तैयारी करो, मक्का पर हमला करना है। 10,000 से ज़्यादा का लश्कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, और उस 10,000 के लश्कर में नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसामा है और साथ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और साथ उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके पास बैतुल्लाह शरीफ की चाबी होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, आज़ी करते हुए दाखिल हुए और उस्मान को कहा दरवाज़ा खोलो। उस्मान ने चाबी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ का ताला खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, साथ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दाखिल हुए थे 10,000 में से। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल बैतुल्लाह शरीफ से बाहर निकले तो मैं दाखिल होने लगा तो बिलाल दरवाजे के पीछे खड़े थे। मैंने उन्हीं से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर किस जगह पर खड़े होकर दखल पड़े, तो वो जगह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने बतलाई थी। तो अल्लाह की कुदरत देखें, जिस मक्का के अंदर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं लेकिन मार पड़ती है, तकलीफ पहुँचती है, ऐसा अल्लाह की कुदरत का गलबा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने इस्लाम को गालिब किया कि सारे खड़े हुए नमाज का वक्त हुआ। फ़अमर बिलाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया। फ़अज़्ज़ना, तो बैतुल्लाह शरीफ की छत पर चढ़कर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान दी। लियग़ीज़ बिहिल मुशरिकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 में से बिलाल को अज़ान के लिए इसलिए चुना ताकि मुशरिक जले, ताकि मुशरिक क्या है, जले। और मदीना में जब नमाज की जमात की फर्जियत हुई तो ये घड़ियाँ, ये टाइम टेबल तो नहीं थे, तो अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दी रब्बी, एक ही रिवायत उनसे है, उन्हें ख्वाब में जिब्रील अमीन ने बतलाया था कि इस तरह अज़ान पढ़ो, तफसीली बात है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी ख्वाब सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक कर दी और फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये कलमे बिलाल को सिखाओ, बिलाल अज़ान पढ़ा करेगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने 5 टाइम की अज़ान देते रहे और वही सदा तौहीद की जो अंगारों के ऊपर और गलियों के अंदर पत्थरों की चट्टानों में बुलंद करते थे, आप अज़ान की सूरत में बुलंद कर रहे हैं और 5 टाइम बुलंद कर रहे हैं। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर अज़ान दी तो अल्लाह ताला ने साथ ये भी बतला दिया, उधर कुरैशी भी थे, हाशमी भी थे, अबू बकर, हज़रत उमर, बाकी भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बतलाया मेरे यहाँ हसब नसब नहीं, मेरे यहाँ मालो दौलत नहीं, मेरे यहाँ शक्ल सूरत नहीं, मेरे यहाँ आमाल, ईमान, तकवा में यार है। और
بکر نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کرایا تھا۔ کیا کرایا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال۔ حضرت عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے، بخاری شریف میں موجود ہے، ہمارا ہر وہ بندہ سردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار ہے، حکمدار ہے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اندر عاجزی اتنی ہے، کہتے تھے انا عبد حبشی، میں تو ایک غلام تھا، حبشی تھا، سیاہ فام تھا، اور ایک سیاہ فام کنیز کا میں بیٹا تھا۔ لیکن اللہ نے اتنی عزتیں اور رفعتیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس ہے، آپ فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ انی سمعت حشب نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں آگے آگے تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو عمل کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، دن ہو رات ہو، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، نفلی نماز پڑھتا ہوں۔ ایک تو نفلی نماز